Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Yes, you are audible. Okay, thank you so much, sister. Okay, so we'll begin with a short meditation. Sit back and relax. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Now bring your attention to your thoughts and emotions. Imagine them as the river, constantly flowing and changing. Observe them without judgment, without trying to change them or push them away. Be the detached observer, standing on the river bank, watching the thoughts and emotions flow by. Notice how they arise and how they pass away. As you observe, remind yourself, I am not my thoughts. I am not my emotions. I am the awareness that observes them. As you continue to breathe, allow yourself to settle deeper into this detached observation. Rest here in this present moment, where you are free to observe, free to breathe, free to simply be. Thank you so much. Okay, so we'll begin with today's session then. I'll just share the screen with you. Okay, all right. Okay, so today we're going to begin with, we're going to continue with chapter one. We were on emotions, and this is page number 30 in the PDF, and in the hard book, it's page number 22. Okay, so we're going to start from here. An emotion usually represents an amplified and energized thought pattern. And because of its often overpowering energetic charge, it is not easy initially to stay present enough to be able to watch it. तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जो इमोशन है वो हमारे अंदर जो फिजिकली हम फील करते हैं हमारी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं कभी कभी वो इतने ज्यादा हमें ओवरपावर करते हैं कि हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम उनके साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं मतलब बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगते हैं हमें वो फीलिंग्स वो इमोशंस तो हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते फिर
It wants to take you over, and it usually succeeds unless there is enough presence in you. If you're pulled into unconscious identification with the emotion through lack of presence, which is normal, the emotion temporarily becomes you. तो जो हमारे हमारे बॉडी में जो सेंसेशंस होते हैं, जो ये हम इमोशंस फील करते हैं, वो हमें हमें कंट्रोल करना चाहते हैं, हमें पूरा अपने आप में इतने ज्यादा ओवर पावर करते हैं कि हम उन्हीं में खो जाते हैं, वी जस्ट बिकम दोज इमोशंस। तो अगर हम बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ आइडेंटिफाई करेंगे, हम अनकॉन्शियसली उन इमोशंस में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हम फिर वो इमोशन ही बन जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, आई एम वेरी एंग्री, आई एम मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर हम उस इमोशन के साथ इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं कि वी थिंक दैट दैट इज हु वी आर। So often a vicious circle builds up between your thinking and the emotion. They feed each other. तो होता क्या है, हम जो सोच रहे हैं वो फिर इवेंचुअली हमारे बॉडी में जो सेंसेशंस होती हैं वो इमोशन बन जाता है, और फिर वो इमोशन थॉट प्रोसेस को फीड करता है, और जो थॉट प्रोसेस है वो इमोशंस को फीड करती है। तो ये एक विशियस सर्कल बन जाता है जो चलता ही रहता है। The thought pattern creates a magnified reflection of itself in the form of an emotion, and the vibrational frequency of the motion keeps feeding the original thought pattern. तो वही होता है, द थॉट जो है वो इमोशन को फीड करता है, और इमोशन थॉट प्रोसेस को फीड करता रहता है। Okay. By dwelling mentally on the situation, event, or person that is the perceived cause of the emotion, the thought feeds energy to the emotion, which in turn energizes the thought pattern, and so on. Basically, all emotions are modifications of one primordial, undifferentiated emotion that has its origin in the loss of awareness of who you are beyond name and form. यहाँ पे ऑथर ये समझा रहे हैं कि ये सारे इमोशंस क्यों हैं, क्योंकि हम अपने जो ओरिजिनल सेल्फ है उससे अवेयर ही नहीं है। हम अपने आप को इतना ज्यादा थॉट्स और इमोशंस से आइडेंटिफाई करने लगे हैं कि हमें लगता है दैट इज हु वी आर। वी डोंट हैव अवेयरनेस ऑफ द व्हाट वी आर बियॉन्ड दिस नेम एंड फॉर्म। इस नाम, ये फॉर्म के बियॉन्ड हम एक्चुअली क्या है, उसकी हमें अवेयरनेस ही नहीं है, वो हमें पता ही नहीं है। Because of its undifferentiated nature, it is hard to find a name that precisely describes this emotion. Fear comes close, but apart from a continuous sense of threat, it also includes a deep sense of abandonment and incompleteness. It may be best to use a term that is as undifferentiated as that basic emotion and simply call it pain. One of the main tasks of the mind is to fight or remove the emotional pain. The reasons for its incessant activity, but all it can ever achieve is cover it up temporarily. तो यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि जो ये कांस्टेंट हमारे इमोशन में जो ये थ्रेट होता है, जो जिससे हमें लगता है कि अगर हम ये इमोशंस नहीं है तो हमारे अंदर वो फियर पड़ जाता है कि मैं फिर हम है कौन। तो इसको ऑथर ने टर्म दिया है पेन। तो ऑथर वही समझा रहे हैं कि माइंड का मेन टास्क है कि ये इमोशनल पेन को फाइट करता रहता है माइंड, और उसको भरने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटीज ऐसे करता है जिससे वो टेम्परेरीली कवर अप हो जाए। जो फियर है माइंड के अंदर ऑफ लॉस ऑफ आइडेंटिटी, कि मतलब खुद को लूज करने की आइडेंटिटी, अगर उनका ये थॉट पैटर्न्स नहीं हुआ तो कुछ होगा नहीं टू आइडेंटिफाई itself with. In fact, the harder the mind struggles to get rid of the pain, the greater the pain.
The mind can never find the solution, nor can it afford to allow you to find the solution, because it itself is an intrinsic part of the problem. तो ये माइंड इतना ज्यादा वो पेन को इसने अपना पेन से कंट्रोल किया हुआ है कि वो द माइंड वांट्स टू ऑलवेज बी इन पेन, हमेशा पेन में ही रहना चाहता है। तो तभी ऑथर यही समझा रहे हैं कि वो सोल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो प्रॉब्लम ही जो प्रॉब्लम है ही माइंड में, वो प्रॉब्लम ही है, और वो सोल्यूशन ढूंढना भी नहीं चाहता। Imagine a chief of police trying to find an arsonist when the arsonist is the chief of police. तो प्रॉब्लम ही माइंड है, जो ये थॉट्स है, ये इमोशंस, जिसने हमें इतना एम्पावर किया हुआ है, ओवर पावर किया हुआ है। तो उसका फिर वो सोल्यूशन कैसे ढूंढे जब वो खुद ही प्रॉब्लम है। You will not be free of that pain unless you cease to derive your sense of self from identification with the mind, which is to say, from ego. तो जब हमें वो पेन से हम फ्री नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने आप को डिटैच नहीं कर लेते अपने माइंड से। The mind is then toppled from its place of power and being reveals itself as your true nature. तो जब हम अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, तब हमारा जो ट्रू एसेंस है, जो इनेटली ओरिजिनल सेल्फ है, वो बाहर आता है। वो अपने आप को, द बीइंग रिवील्स इटसेल्फ, जो सोल पावर है वो हमारी ऊपर आती है। Yes, I know what you're going to ask. I was going to ask, what about positive emotions, such as love and joy? तो अभी सीकर ऑथर से पूछ रहे कि पॉजिटिव इमोशंस का क्या, लव एंड जॉय। तो ऑथर इज एक्सप्लेनिंग, they are inseparable from your natural state of inner connectedness with being. तो जो जॉय, लव, ये सब चीजें तो हमारी इनेट नेचर है, तभी इनसेपरेबल वर्ड यूज किया है कि ये तो कभी हमसे अलग है ही नहीं। दैट इज हु वी आर इनेटली, आर ओरिजिनल सेल्फ, जो सोल की क्वालिटीज है। Glimpses of love and joy or brief moments of deep peace are possible whenever a gap occurs in the stream of thought. For most people, such gaps happen rarely and only accidentally, in moments when the mind is rendered speechless, sometimes triggered by great beauty, extreme physical exertion, or even great danger. तो ऑथर यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि जो ये जो फीलिंग होती है लव और जॉय की, ये थोड़े थोड़े मोमेंट्स के लिए आती रहती है। वो कब आती है? जब हमारे माइंड में, व्हेन वी आर कंप्लीटली इन द प्रेजेंट, जब हम पास्ट या फ्यूचर के थॉट्स में नहीं होते, तब हमें ये ग्लिम्पसेस थोड़ी थोड़ी बीच बीच में, वी फील आवर सोल पावर, हम सोल कॉन्शियस होते हैं। तो ऑथर समझाते हैं कि मोस्टली जो जो जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए ये मोमेंट्स कब आते हैं? जब कोई बहुत ही कुछ उन्होंने ब्यूटीफुल देखा, या एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन, जब बहुत फिजिकली अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं, देन दे फील दैट इनर स्टिलनेस। Suddenly, there is inner stillness, and within that stillness, there is a subtle but intense joy. There is love, there is peace. Usually, such moments are short lived as the mind quickly resumes its noise making activity that we call thinking. तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हम एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज द माइंड कॉन्स्टेंटली वॉन्ट्स टू कीप वॉन्डरिंग इन ईदर द पास्ट और द फ्यूचर। तो ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, फिर क्योंकि फिर वो दोबारा थिंकिंग प्रोसेस में माइंड चला जाता है। Love, joy, and peace cannot flourish until you have freed yourself from mind dominance. But they are not what I would call emotions. तो यहाँ पे ऑथर क्या कर रहे हैं, जब तक हम अपने माइंड के साथ आइडेंटिफाई करते रहेंगे, जब तक हम अपने थॉट्स के साथ
बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तब तक हम ये लव जॉय पीस को एक्सपीरियंस कर नहीं पाएंगे, कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. But they are not what I would call emotions. They lie beyond the emotions on a much deeper level. तो ऑथर कह रहे लव पीस और जॉय को मैं इमोशंस नहीं बुलाऊंगा. ये एक बहुत ही डीपर लेवल पे है, बहुत सटल लेवल पे है, जो हमारे सोल पावर्स हैं, जो सोल के इनेट नेचर है. तो दे आर नॉट इमोशंस. So you need to become fully conscious of your emotions and be able to feel them before you can feel that which lies beyond them. तो वही ऑथर समझा रहे कि जब हम फुली कॉन्शियस होंगे, हमारे इमोशंस को ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये इमोशन मेरे में है, हम उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद ही हम धीरे धीरे वो सोल कॉन्शियस लेवल में पहुंच पाएंगे. Emotion literally means disturbance. The word comes from the Latin emovere, meaning to disturb. तो इमोशन का एक्चुअल मतलब क्या है? ऑथर कह रहे हैं डिस्टर्बेंस. डिस्टर्बेंस इन आवर बॉडीली सेंसेशंस, in our mind. It's just a disturbance from who we actually are. Love, joy, and peace are deep states of being, or rather, three aspects of the state of inner connectedness with being. As such, they have no opposite. This is because they arise from beyond the mind. तो यहाँ पे ऑथर समझा रहे हैं कि इसका जो कोई ऑपोजिट नहीं है, लव जॉय एंड पीस का, देर इज नो ऑपोजिट बिकॉज दे कम फ्रॉम बियॉन्ड द माइंड. वो हमारी सोल की इनेट क्वालिटीज है. ऐसा नहीं कि लव का जैसे हम कहते हैं ना ऑपोजिट हेट है. नो, इट इज नॉट. देर इज नो ऑपोजिट टू इट बिकॉज वो इनेटली हमारा नेचर है. Emotions, on the other hand, being part of the dualistic mind, are subject to the law of opposites. जो emotions है उनके opposites हैं. This simply means that you cannot have good without bad. So in the enlightened mind identified condition, what is sometimes wrongly called joy is the usually short-lived pleasure side of the continuously alternating pain pleasure cycle. तो यहाँ पे ऑथर क्या समझा रहे हैं? जो इमोशंस है उनके ऑपोजिट्स है. जैसे यू नो गुड नहीं मिल सकता विदाउट द बैड. तो जब हम अपने माइंड आइडेंटिफाइड कंडीशन में है, जब हमने अपने आप को ईगो माइंड से बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो उसमें जब हम ये शॉर्ट मोमेंट्स आते हैं जॉय के, जिससे हम सोचते हैं दैट इट्स जॉय, बट इट्स नॉट एक्चुअली जॉय. It is pleasure which it changes to pain as well because it is a cycle. Pleasure is always derived from something outside you, whereas joy arises from within. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन. दैट प्लेजर इज समथिंग दैट वी लुक फॉर आउटसाइड. वो हमें बाहर की चीजों से मिलता है. जैसे कहीं हम सोचते हैं ना डिनर पे चले जाएं, कहीं हॉलिडे पे चले जाएं, कोई समथिंग दैट वी सी दैट रियली एक्साइट्स अस, सो दैट is something from outside. But जो joy है, जो actual happiness, that arises from within. That is something that is internal, not external. The very thing that gives you pleasure today will give you pain tomorrow, or it will leave you, so its absence will give you pain. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि जो चीज जो एक्सटर्नली हमें वो खुशी देती है, वो हम हमारे ईगो माइंड को वो एक्साइटमेंट या खुशी जो भी मिलती है, वो वो जो जैसे हम अटैचमेंट में भी फील करते हैं, दैट विल लीव अस. तो वो आज नहीं तो कल जाना ही है, और फिर उससे पेन होना ही है. And what is often referred to as love may be pleasurable and exciting for a while, but it is an addictive clinging, an extremely needy condition that can turn into its opposite at the flick of a switch.
Many love relationships after the initial euphoria has passed actually oscillate between love and hate, attraction and attack. तो वही ऑथर समझा रहे हैं जो हम कई बार कह देते हैं कि ये लव है, वो एक्चुअल में अटैचमेंट होती है। बिकॉज जब तक वो हमारे साथ है हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे वी फील वेरी गुड। बट एज सून एज दैट पर्सन लीव्स या कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, तो वी स्टार्ट फीलिंग द पेन। तो वही ऑथर कहता है, तो व्हाट हैपेंस कि इनिशियली तो बहुत अच्छा लगता है, बट आफ्टर दैट वो एक लव एंड हेट, अट्रैक्शन और अटैक के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है रिलेशनशिप, क्योंकि हमें वो एक्सपेक्टेशंस हो जाती है उनसे। Okay, real love doesn't make you suffer. How could it? It doesn't suddenly turn into hate, nor does real joy turn into pain. As I said, even before you are enlightened, before you have freed yourself from your mind, you may get glimpses of true joy, true love, or a deep inner peace, still but vibrantly alive. तो ऑथर समझा रहे जो ये रियल लव होता है, जो सोल लव होता है, जो सोल के अंदर से हमें, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम माइंड एंड बॉडी, तो जो वो फीलिंग होती है, दैट इज व्हाट इज रियल लव, दैट इज व्हाट इज द रियल जॉय, एंड दैट विल नेवर टर्न इनटू पेन। तो ऑथर कहते हैं इसके ग्लिम्सेस हमें मिलते हैं, इवन इवन जब हम इनलाइटन स्टेट में नहीं है, जब हम माइंड आइडेंटिफाइड है, इसकी थोड़ी थोड़ी झलक हमें मिलती रहती है। These are aspects of your true nature which is usually obscured by the mind. तो ये सब क्या है, दिस इज आवर ट्रू नेचर, बट माइंड क्या है, माइंड उसको वही नेगेटिविटी से, क्वेश्चन से कवर अप करता रहता है, जो लेयर्स लगी हुई है हमारे माइंड में। Even within a normal addictive relationship, there can be moments when the presence of something more genuine, something incorruptible can be felt, but they will only be glimpses, soon to be covered up again through mind interference. तो कोई भी रिलेशनशिप में, जैसे ऑथर समझा रहे, नॉर्मल रिलेशनशिप में भी वो मोमेंट्स होते हैं जब ट्रू लव फील होता है, बट वो सिर्फ टेम्पररी होता है, इट्स जस्ट ग्लिम्पसेस होते हैं, क्योंकि वो माइंड इंटरफेयर करता है उसके बाद। It may seem that you had something very precious and lost it, or your mind may convince you that was all an illusion anyway. The truth is that it wasn't an illusion and you cannot lose it. It is part of your natural state, which can be obscured but can never be destroyed by the mind. तो जो ये हमें मोमेंट्स मिलते हैं, जो हम बीच बीच में बहुत ऐसे लव जॉय एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें क्या लगता है फिर, जब जब हम वो लूज कर देते हैं या जब कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो हमें लगता है वो सब तो एक इल्यूजन था, ऑल दोज लविंग मोमेंट्स दैट वी हैड, दैट वाज ऑल एन इल्यूजन। बट ऑथर समझा रहे कि दैट इज नॉट एन इल्यूजन, दैट इज व्हाट वी एक्चुअली आर। बट वो माइंड उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उस फीलिंग को, इस इमोशन को। Even when the sky is heavily overcast, the sun hasn't disappeared. It's still there on the other side of the clouds. कितनी important line है ये कि imagine yourself as the sky, the soul is the sky, our consciousness is the sky, और जो ये thoughts, emotions जो भी हम feel करते हैं, they are all just temporary clouds, you know तो वही ऑथर कह रहे हैं कि द सन डजंट डिसअपियर, जो जो वो रोशनी है, वो लाइट है, वो डिसअपियर नहीं हो जाती, खाली उसके आसपास क्लाउड्स आ जाते हैं जो उसको कवर अप कर लेते हैं, तो फिर वो नजर नहीं आता हमें सन, बट द सन इज स्टिल देयर, इट हैजंट डिसअपियर्ड। इट्स द सेम फॉर अस, द सोल इज ऑलवेज देयर, द सोल इज ऑलवेज शाइनिंग द लाइट, बट यही जो हमारे इमोशंस एंड थॉट्स है, ये कवर कर देते हैं उसको, they are like clouds. Okay. So the Buddha says that pain or suffering arises through desire or craving, that to be free of pain, we need to cut the bonds of desire.
Okay, so the seeker कह रहा है कि the Buddha says that pain or suffering arises through desire or craving. तो जो pain है वो क्यों आती है? Because कोई desire है हमें. And that to be free of pain we need to cut. मतलब हमें वो desire की जो हमारे अंदर से जो feelings है उनको हमें break करना पड़ेगा to be free from pain. तो ऑथर समझा रहे हैं all cravings are the mind seeking salvation or fulfillment in external things and in the future as a substitute for the joy of being. तो जो भी हमारी ये इच्छाएं हैं जो भी क्रेविंग्स हैं हम सोचते हैं हमें बाहर से कुछ मिलेगा उससे हम कंप्लीट फील करेंगे. तो ये सब क्या है? ये सब एक्सटर्नल थिंग्स हैं जो हम सोचते हमें कंप्लीट कर सकते हैं. दे आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द जॉय ऑफ बीइंग. As long as I am my mind, I am those cravings, those needs, wants, attachments, and aversions. And apart from them, there is no I, except as a mere possibility, an unfulfilled potential, a seed that has not yet sprouted. तो ऑथर कह रहे हैं कि जब तक हम माइंड से आइडेंटिफाइड है हम क्या सोचते हैं हम वो नीड्स हैं हम वो अटैचमेंट्स हैं एवरीथिंग वो एक्सटर्नली जो हमें मिल सकता है जिससे हम कंप्लीट फील करें बट उसमें कुछ मैं हुई नहीं दैट दैट जो अंदर की जो सीड है जैसे ऑथर कह रहे हैं दैट सोल दैट सीड वो उभर के आई नहीं है दैट हैज नॉट कम आउट टू द सर्फेस वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड दैट. In that state, even my desire to become free or enlightened is just another craving for fulfillment or completion in the future. तो जब तक हम माइंड से आइडेंटिफाई करते रहेंगे ये इनलाइटमेंट इनलाइटेंड फील करना वो कंप्लीट फील करना भी एक इच्छा ही होगी एक डिजायर ही होगी. So don't seek to become free of desire or achieve enlightenment. तो हमें ये भी नहीं माइंड ये भी माइंड सोचता रहता है कि कब कब मैं इस थॉट से फ्री होऊंगा कब कब मुझे मुक्ति मिलेगी जैसे हम कहते हैं बट ये भी थॉट्स नहीं क्रिएट करने हैं. Become present. Be there as the observer of the mind. Instead of quoting the Buddha, be the awakened one, which is what the word Buddha means. तो कह रहे कि हमें कुछ सीख नहीं करना कि हमें अचीव करना है एनलाइटमेंट हमें बस अपने माइंड से आइडेंटिफाई करना बंद करना है हमें प्रेजेंट में रहना है. तो दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि ऑब्जर्वर बनना है हमें माइंड का. तो इंस्टेड ऑफ कोटिंग जो बुद्धा कह रहा है बी द बुद्धा बी द अवेकेंड वन. ओके. Humans have been in the grip of pain for eons ever since they fell from the state of grace, entered the realm of time and mind, and lost awareness of being. At that point, they started to perceive themselves as meaningless fragments in an alien universe, unconnected to the source and to each other. तो वही ऑथर समझा रहे कि हम इस पेन में कितने कितने जन्मों से है कितने टाइम से है जब से हमने वो अवेयरनेस हम लूज कर चुके हैं कि हम हु वी एक्चुअली आर. तो जब से हमने माइंड से आइडेंटिफाई करना शुरू किया है जब हम ये टाइम और माइंड फ्रेम में आए हैं तब से वी हैव लॉस्ट कनेक्शन और एंड अवेयरनेस ऑफ आवर सोल. Pain is inevitable as long as you are identified with your mind, which is to say, as long as you are unconsciously, spiritually speaking. I am talking here primarily of emotional pain, which is also the main cause of physical pain and physical disease. तो पेन होना ही है. ऑथर समझा रहे हैं कि जब तक हम हमने अपने आप को माइंड से आइडेंटिफाई किया है हमें वो पेन होना ही है. Resentment, hatred, self-pity, guilt, anger, disease,
anger, depression, jealousy, and so on, even the slightest irritation are all forms of pain. And every pleasure or emotional high contains within itself the seed of pain, its inseparable opposite, which will manifest in time. Anybody who has ever taken drugs to get high will know that the high eventually turns into a low, that the pleasure turns into some form of pain. तो ड्रग्स की कैसे एडिक्शन हो जाती है? क्यों लेते हैं ड्रग्स? क्योंकि वो एक हाई फीलिंग चाहिए होती है, वो एक जिस बिकॉज वो ड्रग्स लेते हैं तो माइंड के थॉट्स वगैरह सब रुक जाते हैं, तो दे गो इन द नो माइंड जोन। एंड व्हाट हैपेंस दैट टाइम कि फिर उसके बाद जब वो वो उसका असर खत्म हो जाता है, देन दे गो इनटू पेन। तो वो एक एडिक्शन हो जाती है। Many people also know from their own experience how easily and quickly an intimate relationship can turn from a source of pleasure to a source of pain. Seen from a higher perspective, both the negative and the positive polarities are faces of the same coin, are both part of the underlying pain that is inseparable from the mind identified egoic state of consciousness. तो ये सेम चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है। जो अगर हमें जिस चीज से वो प्लेजर मिलता है वो पेन भी होना ही है। तो वही ऑथर कह रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ द सेम कॉइन, यू नो पॉज pleasure and pain are part of the same coin. Okay. There are two levels to your pain, the pain that you create now and the pain from the past that still lives on in your mind and body. Ceasing to create pain in the present and dissolving past pain. This is what I want to talk about now. तो ऑथर अभी यहाँ पे क्या समझा रहे हैं कि टू लेवल्स ऑफ पेन है, एक जो हम अभी क्रिएट करते हैं, और एक जो हमारे पास्ट लाइफ से चली आ रही है, दैट द पास्ट फ्यू बर्थ से जो कितनी हमारे बर्थ से जो चली आ रही है वो पेन। तो जब तक हम वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी ऑथर उसके बारे में बताएंगे इन चैप्टर 2। तो आई थिंक थोड़ा सा हम कर लेते हैं चैप्टर 2 स्टार्ट। Okay, so the chapter 2 is consciousness, the way out of pain. Create no more pain in the present. Nobody's life is entirely free of pain and sorrow. Isn't it a question of learning to live with them rather than trying to avoid them? तो सीकर कह रहा है कि किसी की भी लाइफ फ्री ऑफ पेन या सॉरो नहीं है, तो उसके साथ ही रहना है, रादर देन अवॉइडिंग इट। ये सीकर पूछ रहा है ऑथर से। द ऑथर इज सेइंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ ह्यूमन पेन इज अननेसेसरी, इट इज सेल्फ क्रिएटेड एज लॉन्ग एज द अनऑब्जर्व्ड माइंड runs your life. The pain that you create now is always some form of non-acceptance, some form of unconscious resistance to what is. तो वही ऑथर समझा रहे कि जो पेन हम क्रिएट करते हैं वो मोस्टली हमारी सेल्फ क्रिएटेड ही होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। जो सिचुएशंस आ रही है लाइफ में उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते और रेजिस्ट करते हैं। वो अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस है। On the level of thought, the resistance is some form of judgment. On the emotional level, it is some form of negativity. The intensity of the pain depends on the degree of resistance to the present moment, and this in turn depends on how strongly you are identified with your mind. The mind always seeks to deny the now and to escape from it. In other words, the more you are identified with your mind, the more you suffer. Or you may put it like this, the more you are able to honor and accept the now, the more you are free of pain, of suffering, and free of the egoic mind. तो यहाँ पे ऑथर क्या समझा रहे हैं कि इमोशनल लेवल पे क्या है रेजिस्टेंस? इट इज सम नेगेटिविटी, ठीक है। एंड
और ये थॉट प्रोसेस में क्या है, जो रेजिस्टेंस है, जो जैसे जो हम जजमेंट्स हम पास करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, दैट इज जजमेंट, जो हमारी रेजिस्टेंस होती है एक्चुअली, और इमोशनल लेवल पे नेगेटिविटी होती है। तो जितना हम रेजिस्ट करेंगे उतनी पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, जितना ज्यादा हमें रेजिस्टेंस होती है। और माइंड हमेशा डिनाई करता है टू बी इन द प्रेजेंट, उसको वही पेन में रहना पसंद है। तो जितना हम माइंड के साथ आइडेंटिफाई करेंगे उतना हम सफर करते रहेंगे। तो जब जितना हम प्रेजेंट में रहेंगे, देन वी विल बी फ्री ऑफ पेन, ऑफ सफरिंग, एंड फ्री ऑफ द इगोइक माइंड। ओके, तो आई थिंक यहाँ से हम कल से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज जो हमने क्वेश्चंस हमने जो आज के क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं वो आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। ओके, सो आप वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर, या यूट्यूब पे भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। Okay, so the first question is, the author emphasizes that love, joy, and peace cannot flourish until you have freed yourself from mind dominance. What have you understood from this? तो ऑथर क्या कह रहे हैं कि लव, जॉय एंड पीस को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे जब तक हम माइंड से आइडेंटिफाइड हैं। तो आपने इसके बारे में क्या क्या समझा है बेस्ड ऑन आर टुडे सेशन? तो आप वो आंसर कर सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैव यू लर्न्ड टुडे अबाउट प्लेजर एंड जॉय, आर दे सेम और डिफरेंट? तो सेकंड क्वेश्चन है कि आज हमने क्या सीखा है अबाउट प्लेजर एंड जॉय। तो क्विकली अगर आप में से कोई आंसर करना चाहे तो कर सकते हैं, आज हमारे पास थोड़ा टाइम है अभी। कोई आंसर करना चाहेगा इसके क्वेश्चंस? हाँ जी, करो ना सिस्टर। Good evening, Anika Di. Thank you for this session. थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके, हाँ जी। Pleasure is temporary happiness. It is not the innate quality of the soul that we learn. And joy is the opposite of pleasure. Pleasure later gives us pain or leaves us alone. But joy is our innate nature. Joy is the nature of the being that we experience when we are truly connected to ourselves. Thank you. Yes, thank you so much for sharing, sister. Thank you so much. Thank you, Priya, sister, for joining. Okay. Okay, so we'll see you all tomorrow. Thank you for joining. Bye.